You need to refire rather than retire. अभी इन्वेस्ट का horizon will change. Instead of it being a 5, 10, 15 year horizon, ये 30, 40 year का horizon हो जाएगा. कि don't come with the singular mindset of instant gratification. कुछ भी आपको overnight नहीं मिल सकता, और अगर वो मिलता है तो वो मिथ है. मुझे तो लगता है ये जर्नी अभी और भी 25-30 साल की अभी भी बाकी है. हमने जो अभी जो की है वो है सेविंग. व्हेन आई एम अर्निंग मनी, आई एम सेविंग. इंस्टेड ऑफ जस्ट कीपिंग इट इन द बैंक, आई एम नाउ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, SIP, बॉन्ड, AIF, InvIT, REIT सब आ गए हैं. लेकिन अभी भी ऑब्जेक्टिव है कि मैं जब भी रिटायर हो जाऊं तभी मेरे पास 1 करोड़ रुपये हो, 2 करोड़ रुपये की मेरी कैपिटल. एंड इट इज़ करेंटली अज्यूम कि रिटायरमेंट के बाद इट इज़ अगेन बिकम्स ओनली सेविंग. बट अभी अगर आप 60 साल में रिटायर होते हो और आपकी एक्सपेक्टेंसी इज 80-85 ईयर्स ओल्ड, आपके पास और भी 25 साल इन्वेस्टिंग के लिए है. तो वो जो फॉरेन में हुआ है एन्यूइटीज एंड पेंशन फंड्स एंड ऑल, वो तो इंडिया में अभी तक आया नहीं है. तो इंडिया में तो अभी ओनली फेज 1 हुआ है कि हम जब भी कमाते हैं तभी हम जो सेव करते हैं उसको इन्वेस्ट करना चालू किया है. हम जब भी कमाना बंद करेंगे तभी हमारी जो रिटायरमेंट सेविंग है उसमें भी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है. उसमें एन्यूइटीज आते हैं, पेंशन फंड आते हैं. तो ग्लोबली पेंशन फंड्स आर वेरी बिग, इंडिया में तो बहुत कम है. तो ये अभी जर्नी, इट स्टार्टेड 30 years ago. इट्स बीन अ स्लो जर्नी वेयर इंडियंस हैव गॉट मोर कन्विंस कि हमें इन्वेस्ट भी करना चाहिए, सेव भी करना चाहिए, इन्वेस्ट भी करना चाहिए. अभी इन्वेस्ट का horizon will change. Instead of it being a 5, 10, 15 year horizon, ये 30, 40 year का horizon हो जाएगा. और उसमें the real game will start. Essentially, there are expectations that are there in this community or in this let's say cohort of people, the youngsters, to say कि भाई हम जो है 15 साल काम करेंगे, 10 साल काम करेंगे, 20 साल काम करेंगे, उसके बाद हम जो है we will enjoy our life. अब मुझे ये लगता है कि and in my own experience and the experience of a lot of other people that I've had the good fortune of knowing, you need to refire rather than retire. That term really tells me that in life, you don't really retire from something, but you refire into something, right? So essentially, I mean, while all of us would want to imagine a situation, हम सोचना चाहते हैं कि भाई एक दिन ऐसे होगा कि हम जो है जीरो काम करेंगे और बीच में बैठे रहेंगे और बियर पियेंगे. ये कई लोगों की मतलब कल्पना ही होती है. बट द रियलिटी इज दैट यू नीड टू थिंक अबाउट व्हाट आफ्टर दैट. देयर आर 2 broad issues that I think typically comes to people's mind. One is of course कि भाई आपके पास do you have enough to be able to live through this so-called retired life, right? And as you know equally well that there is improving mortality, right? I mean, people are now living well into their 80s, right? I'm fortunate to have parents who are well into their 80s, touch wood, they are in good health, and with improving medical conditions, ये होने वाला है. So which means that all of us will be blessed with fairly long life, most of us, right? Because, by and large, medical conditions and medical facilities are improving. So we need to think about whether there is enough to be able to live for as much or beyond the amount of time that you really worked towards creating a corpus. So ek to ye hai, this is the financial element to this. The second element, which I think doesn't get spoken about, इतना ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं होता है, but the reality is that जब आप काम करते हैं, you're identified many a times by what you do and where you work and what is the kind of work that you do. Once you have given that up, when you choose to say, I want to put an end to this and I want to move into the next phase of my life where I will do nothing, there is a khalipan which sets in. Maybe after 6 months you may enjoy traveling the world, maybe going to Goa and staying there for 3 months in a shack and spending time there. But what after that? I think ये जो खालीपन है, and I have seen this play out in loneliness सबसे बड़ा pandemic. बिल्कुल. और ये इसकी जो implication on health है, right? And I have seen this, and this is something that I've always wondered. Why is it that by and large जो आप self-employed category के जो लोग होते हैं, जो गद्दी में बैठते हैं for instance, right? दुकान है या गद्दी में बैठते हैं या business है उसके अंदर ऑफिस में बैठते हैं, you will see that most of the patriarchs are well into their 70s and are very, very active.
So I think there is a very strong correlation between staying gainfully occupied and your health. And this is something that I've seen in a number of salaried individuals who at the age of 60 say, listen, I have not really planned for what I will do post my retirement. And you see that in a couple of years, their health starts taking a downturn, right? So I think this FIRE movement, my personal opinion, of course, each to his own, but I think it is a little overstated, and I think one needs to think through the implications of this so-called early retirement. FIRE, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस टू रिटायर अर्ली, बिल्कुल जो ठीक कह रहे हैं आप। फिलॉसफी है, क्या आप सहमत हैं उससे? मुझे टर्म तो बड़ी पसंद है विवेक। मैं सच बताऊं तो आपको, आई लाइक दिस फायर कॉन्सेप्ट। यू नीड टू हैव फायर इन योर बेली टू डू दिस फायर। लेकिन एक बात बताइए, हमारे टाइम में भी यही होता था कि 40 साल के होंगे हम रिटायर हो जाएंगे, तब भी फायर नहीं कहते थे, लेकिन उम्मीद तो सबकी होती थी। देखिए, तब आपकी बेली में फायर थी विवेक। तो क्या कितने इन्वेस्टर्स की बेली में फायर है, ये आप बताइए मुझे। अब ये बोलना आसान है, लेकिन क्या आप उस पे अमल कर रहे हैं? इसका अगर आप थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करें ना, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट है लिव फ्रूगली, सेव मोर, रिटायर अर्ली। आप रिटायर अर्ली तो होना चाहते हैं, क्या फ्रूगली लिव करेंगे? क्या सेव ज़्यादा करेंगे? इसके अंदर 60 to 70% की आपको सेविंग करनी पड़ेगी। हम कहते हैं आप 30% ही कर लीजिए सेविंग आज की डेट के अंदर। फ़र्क देखिए आप। और जो विड्रॉल होता है, हम ये बोलते हैं आप 5 से 6% के हिसाब से कॉर्पस का आप सालाना निकाल सकते हैं इन्फ्लेशन और टैक्स बचाने के बाद। इसमें बोलते हैं हम 3 से 4% निकाल सकते हैं सिर्फ। तो आपको वो कॉर्पस बनाना पड़ेगा कि आपका जो 4% है या 3% है आपका, वो आपके खर्चे को सफाइज कर ले, और वो भी तब जब आप 40, 45, 50 साल में रिटायर होना चाहते हैं। क्योंकि आज की डेट में जो आपकी लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ है वो तो बढ़ रही है ना। डोंट कम विद द सिंगुलर माइंडसेट ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। कुछ भी आपको ओवरनाइट नहीं मिल सकता, और अगर वो मिलता है तो वो मिथ है। मैं नहीं कह रहा आप पैसा नहीं कमाएंगे, ओवरनाइट कमा सकते हैं, बट क्या आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं इज समथिंग विच यू हैव टू डिफाइन। तो अगर आप लॉन्जिविटी के साथ आएंगे तो जो प्रोबेबिलिटी है आपकी इंडस्ट्री में रहने की, इन्वेस्टमेंट को सस्टेन करने की, वो मल्टीफोल्ड रहेगी। क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी है कंपाउंडिंग का बेनिफिट। जितनी जल्दी आप समझ जाए कंपाउंडिंग का बेनिफिट, उतने ज़्यादा सुखी रहेंगे आप। तभी कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है।